أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میم؟ الحمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. شروع کریں کلاس؟ جی میم. جی میم. ہم لوگ ہیں آج 26 لیسن میں اپنے، اور کر رہے ہیں مرکبات، جس میں کر رہے ہیں مرکب اضافی. کل ہم لوگوں نے اس کا انٹرو دیکھا تھا اور آج تھوڑا آگے دیکھیں گے. یہ دیکھیں اتنے مرکبات آپ کو کرنے ہیں. ہم لوگ تھرڈ پہ ہیں مرکب اضافی پر، جس کو کہ میں نے بتایا کہ اس کو یہ تھوڑا وقت لگے گا اس میں، کیونکہ مختلف قسم کے مرکب اضافی ہیں. ہم ہر ایک کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی. تو کل ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مرکب اضافی، چلیں آپ لوگ کو لے کے چلتے ہیں، آپ لوگوں سے ہی پوچھتے ہیں. تو شبینہ بتائیں گی کہ مرکب اضافی کے دو پارٹ جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مرکب اضافی کے دو اجزاء یا پارٹس کیا ہیں؟ مرکب اضافی کے دو پارٹ مطلب مضاف اور مضاف الیہ. جی ہاں، مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور نفیسہ بتائیں گی مضاف کی کیا کنڈیشن ہے؟ کیا کنڈیشنز ہیں اس کی مضاف کی؟ مضاف میں ال نہیں ہونا چاہیے، ایک ہوں، تو ال سے شروع نہیں ہونا چاہیے، اور تنوین نہیں ہونی چاہیے دوسری. ہاں نہیں، دوسرا والا پوائنٹ اینڈ میں تھوڑا بڑے تنوین لیول پہ نہیں ہونا بتائیں. چاہیے. جی اینڈ میں لفظ کے اینڈ میں مضاف کے اینڈ میں ہوں. تنوین نہیں ہونی چاہیے. ہاں نہیں، اس کو کیونکہ نون بھی تو آتا ہے نا، تو وہ نون. پوائنٹ تو پھر انکمپلیٹ سا ہو گیا. اس کو اس طرح سے آپ بتائیں گی. میں یہاں پہ ایک بار پھر لکھتی ہوں. مضاف کا پوائنٹ نمبر 1 آپ کا صحیح تھا کہ شروع میں ال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پورا مضاف ہے اور شروع میں ال نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ اعراب ہلکا آپ بولیں گی، جی. کیونکہ اعراب ہلکا میں دو پوائنٹ ہیں. آپ نے ایک بولا تو ایک رہ گیا. ایک تو تنوین والا ہے، اور دوسرا اینڈ میں جو نون آتا ہے، کچھ الفاظ کے اینڈ میں نون آتا ہے نا مثنیٰ اور جمع بنانے کے لیے. آنی اونا والے نون جو ہیں جتنے بھی، جی. یہ بھی اعراب کی وجہ سے ایڈ ہوئے نا. آنی اونا، اسی سے تو اعراب پتہ چلتا ہے. تو یہ دونوں ان کو ہلکا کریں گے. یہاں پہ تنوین ہٹا کے سنگل حرکت لگا دیں گے، اور یہاں پہ یہ نون جو ہے اس کو ہٹا دیں گے. تو آپ سے جب پوچھا جائے گا تو دو پوائنٹ آپ کو جو بولنے ہیں، اس میں اگر آپ صرف تنوین کہیں گے تو یہ پوائنٹ مس ہو گیا. آپ کو بولنا ہے مضاف کی دو شرائط جو ہیں وہ کیا ہے. اس کے شروع میں کبھی ال نہیں ہوتا اور اعراب اس کا ہلکا ہوتا ہے. بولیں، پھر سے بولیں. مضاف کے شروع میں ال نہیں ہوتا، اور سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اعراب ہلکا ہوتا ہے، جی ہاں، ویری گڈ. اور اس میں تنوین نہیں ہوتی، اور سیکنڈ ہے اس کا کہ اینڈ میں نون نہیں ہوتا. ہاں جی ہاں، نون بھی حذف ہو جاتا ہے. نون مضاف. ہٹا دیا جاتا ہے اگر بنایا جائے مضاف. تو اگر کوئی صرف پوائنٹ پوچھے تو آپ یہ بتائیں گی. پھر اگر کوئی پوچھے کہ اعراب ہلکا کرنے کا کیا مطلب ہے، تب آپ یہ دونوں پوائنٹ بتا دیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مضاف الیہ کی کیا کنڈیشن ہے؟ نفیسہ، مضاف الیہ کی کیا کنڈیشن ہے؟ مضاف الیہ کی کنڈیشن. چلے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. روبینہ آپ بتائیے مضاف الیہ کی کیا کنڈیشن ہے؟ یہ زیر کے ساتھ آتا ہے. جی. زیر نہیں بولیں گی آپ، حالت جر بولیں گی. جی ٹھیک ہے، بس حالت جل کے ساتھ جی آتا ہے. حالت، کیونکہ حالت جر میں سارے تو زیر میں نہیں جاتے نا.
कुछ ऐनी जी। हो जाते हैं, कुछ ईना हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हालत जर में होते हैं। मुजाफ इलैह हालत जर में किस में चला होगा, जाता। हालत जर में। जेर हालत जर। छोटे बच्चों को बता दिया जाता है कि जेर होती है, क्योंकि जाहिर है वाहिद इसम पे जेर होती है, तो वो उनको वाहिद कहीं जब होता है तो कह दिया जाता है कि जेर। लेकिन अब आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि आप एराब कर चुके, आपको रफा नसब जर की पूरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, 10 क्लासेस उसी की हुई थी, तो आपके लिए आंसर ये है कि मुदाफ इलैह, आपका आंसर सही था, मैंने नहीं कह रही हूँ गलत था, लेकिन कंप्लीट नहीं था। तो मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। अब जर में। कि जो वाहिद इसम होगा वो जेर ले लेगा, है ना। जो मुसन्ना होगा वो ऐनी में चला जाएगा, और जो जमा होगा वो ईना में चला जाएगा। इसी तरह जमा मुअन्नस जो है वो आतिन में चला जाएगा। ठीक है, आतिन आतिन हो जाता है, आतुन आतिन आतिन होता है ना। वो जितनी भी जर वाला कॉलम है वो सारा कोई भी इसम होगा वो जर वाले कॉलम में चला जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स आपको, अब अगली क्लास होगी उसमें फिर ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह देंगे। चले आ जाए अफशा, और बताएं मुजाफ की डेफिनेशन क्या है। अफशा जल्दी से माइक अनम्यूट करके बताइए कि मुजाफ की डेफिनेशन क्या है। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म से निस्बत दी जाए या ताल्लुक कायम कर दिया जाए, मुरक्कब इजाफी कहलाता है। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने मुरक्कब इजाफी की डेफिनेशन एकदम सही बताई। लेकिन मैंने पूछा था मुजाफ किसे कहते हैं। अच्छा, मुजाफ किसे, मुजाफ, मुजाफ, मुजाफ को ही कहते हैं। समझ नहीं आई मैम, एक बार फिर बोले। ये मुजाफ दिख रहा है, जी जी। इसका क्या मतलब है। अगर कोई आपसे पूछे कि मुजाफ किसको कहते हैं या मुजाफ से क्या मुराद है, तो आप क्या बताएंगी। चले साइमा बता देती हैं, आप गौर से मुजाफ, सुन लीजिए जी और जी। अगली क्लास में बताइएगा। ठीक है, साइमा बताइए। मुजाफ वो इस्म होता है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म से बताई जाए, ताल्लुक या निस्बत। जी हाँ, ऐसा इस्म जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म से दी जाए उसे मुजाफ कहते हैं। मुजाफ इलैह किसे कहते हैं साइमा। मुजाफ इलैह वो इस्म होता है जिसकी तरफ निस्बत की जाए। बिल्कुल सही, और इसको बस इसी से याद कर लेंगे, इलैही का मतलब होता है जिसकी तरफ। तो जी मुदाफ इलैह वो इसम होता है जिसकी तरफ मुदाफ की निस्बत की जाए, तो ये मुदाफ इलैह हो गया। और जब भी कोई डेफिनेशन आप करेंगी अफशा, तो उसका डेफिनेशन याद करने का आसान तरीका होता है कि जी। हम अपने जहन में एक एग्जाम्पल रख लें। बैतुल्लाही, अब बैतुल्लाही में अल्लाह का घर, जब मैंने अल्लाह का घर कहा तो आपके दिमाग में अल्लाह आया या घर आया। घर आया, ठीक है। बैतुल्लाही जब मैंने कहा अल्लाह का घर, तो आपके दिमाग में काबा आया, आपके दिमाग में, जी ठीक है, तो काबा की पिक्चर आई फौरन। तो ये हो गया काबा, यानी बैत जो हो गया ये हो गया मुदाफ, और इसकी निस्बत दी जा रही है, इसका ताल्लुक, इस इस्म का ताल्लुक, अब ये मुदाफ डिसाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि उस इस्म का ताल्लुक किसी से है, जिसकी तरफ ताल्लुक जा रहा है, यहाँ पे अल्लाह की तरफ ताल्लुक जा रहा है, तो लफ्ज अल्लाह यहाँ पे, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह यहाँ पे, नहीं, ये गलत। अल्लाह का जब भी नाम आएगा तो आप कहेंगे लफ्ज अल्लाह इस मुरक्कब के अंदर मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी तरह याद रख लें कि क्योंकि हम लोग कुरान में करेंगे तो वहां ज्यादातर मुरक्कब इजाफी में अल्लाह का भी नाम आ सकता है। ज्यादातर तो मैंने गलत लगा दिया, अल्लाह का। तो जब भी कभी आप ग्रामर के हिसाब से लफ्ज अल्लाह को यूज करेंगी तो वहां पे ये नहीं कह देंगी कि ठीक है, लफ्ज अल्लाह बोलेंगी। लफ्ज अल्लाह यहाँ पे मुदाफ इलैह है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बैतुल्लाही ये हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह समझ में सबकी आया है। मैं चाहती हूँ कि बोलना भी क्लियरली आ जाए, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस चलेगी। शुरू के हर क्लास के 5 मिनट हम लोग यही पेज कर रहे होंगे कि मुजाफ की कंडीशन क्या है, मुजाफ की डेफिनेशन क्या है, मुरक्कब इजाफी की डेफिनेशन क्या है, और एक एग्जाम्पल बैतुल्लाही। कल हम लोगों ने एराब हल्के कर लिए थे, जिसमें आपने देखा था कि ये सारी तनवीन हटा के सिंगल हरकत कर दी थी। यहाँ पे भी देखिए तनवीन हटा दी थी नसब और जर में, और इसको कर दिया था किसमें, हालत नसब में। ये सारे नसब वाले हैं। आयातिन, आतुन, आतिन, आतिन ना, आतिन भी तो नसब की हालत में होता है।
تو یہ سارے نصب کی حالت میں ہے، یہ دیکھیں سب نصب کی حالت میں چلے گئے، اور یہ جر کی حالت میں. ٹھیک ہے، یہ سب آیاتن دیکھیں دونوں جگہ موجود ہے، کیونکہ آپ نے اسی طرح یاد کیا ہے آتن آتن آتن. تو آیاتن یہاں پہ دیکھیں رفع کی حالت میں، آیاتن نصب کی حالت میں، اور آیاتن ہی جر کی حالت میں، سب سنگل حرکت ہو گئی. پھر حالت رفع میں جو نون والی چیزیں ہیں، یعنی جمع، آپ دیکھیں یہ کیا تھا آپ کا تثنیہ، یہ نون اعرابی ڈراپ ہو گیا. کتابا، یدانی سے یدا، اور بنونا سے بنو، یہ حالت رفع میں. اور کتابینی سے کتابئی، یدینی سے یدئی، اور بنینا سے بنی. تو یہ ہو گئی آپ کے حالت نصب اور جر کے اعراب ہلکے. اب دیکھتے ہیں آج ہم لوگ آ جاتے ہیں بنانے پر، کہ مرکب اضافی میں اللہ کا گھر، جیسے پہلا آپ دیکھ رہی ہیں، یہ تو دیکھیں ہم نے انہوں نے کیا ہی ہوا ہے. تو اللہ کا گھر، جیسے ہی ہم کو یہ کا دکھا اور ہم سمجھ بھی گئے، جب ہم نے ٹرانسلیشن کیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لفظ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یہاں کا بیچ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کا ترجمہ اب کرنا ہے عربک میں، کس کے حساب سے؟ مرکب اضافی کی طرح سے. مرکب اضافی میں پہلے ہم مضاف لکھیں گے، تو ہمیشہ جب بھی ترجمہ کریں گے تو کراس تیر کی مدد سے کرنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے، تو پہلے گھر لے کے آئیں گے، گھر بن گیا ہمارا مضاف. تو اب گھر لفظ جو لے کے آئیں گے، اس کے شروع میں نہ ال لائیں گے، نہ آخر میں تنوین یا نون لائیں گے. ٹھیک ہے، تو صرف لکھیں گے بیت. اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اسم جب اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو پیشی سے لکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اس کے زبر زیر میں جانے کی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہاں پہ مضاف جو ہے ہم پیش سے ہی لکھیں گے. اگر اس کے پہلے سمجھے کوئی حرف جر آ جائے تب یہ زیر کے ساتھ ہوتا، یا کوئی ایسا لفظ آتا جو اس کو نصب میں لے جاتا تو یہ زبر کے ساتھ ہوتا. لیکن چونکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ سارے مضاف جو ہم لیں گے وہ سب پیش کی ہی حالت میں لیں گے، کیونکہ یہ مطلب الگ سے یہ مرکب ہیں، جملے کے اندر ابھی استعمال نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا بیتو، ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. اب اللہ، لفظ اللہ یہاں لکھیں گے، اور لفظ اللہ چونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے یہاں پر، تو اس لیے اس کو ہم حالت جر میں لے جائیں گے. جو سنگولر ہوتا ہے اس کیا ہو جاتا ہے؟ زیر لگتی ہے سنگولر میں، واحد میں. تو بیت اللہ، اللہ کا گھر. اسی طرح اللہ کی کتاب سے بالکل سمپل ہے، کتاب اللہ. یہاں پہ اس جگہ پہ کراس تیر سے کریں گے اور یہ ہو جائے گا کتاب. ٹھیک ہے، نہ ال ہوگا اور نہ وہ ہوگا، کتابو ہوگا. یہ بالکل اسی طرح کتابو اور کتاب اللہ. اللہ کا رسول، رسول اللہ. ٹھیک ہے، ہمیں اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے کبھی کہ یہاں پہ رسول اللہ کریں کہ رسول اللہ کریں، کلمے میں بھی لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. تو جب آپ یہ گرامر کی چیزیں پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ ساری غلطیوں سے بچ جائیں گی، آپ کو بہت کلیئر رہے گا. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ، کیونکہ اس کے پہلے کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہوگا تب یہ لفظ، یہ تو حالت جر میں ہمیشہ رہے گا. مضاف جب اس کے پہلے کوئی چیز آئے گی تو مضاف جا سکتا ہے نصب یا جر میں، لیکن یہ تو حالت جر میں ہی رہے گا، چاہے یہاں پہ کچھ بھی آئے یا یہاں پہ کچھ بھی آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کی کنڈیشن ہے. چلیں اب آگے آپ لوگ کریں گی. میں بلاتی ہوں، سب سے پہلے بلا لیتی ہوں میں امبرین کو. جی میم. امبرین آ جائیے اور آپ جی میم. کریے، نیکسٹ کریے یہ نیکسٹ لائن، اللہ کا بندہ. عبداللہ. ویری گڈ، عبداللہ. اور اللہ کی مدد. نصر اللہ. ویری گڈ. اور اللہ کی نعمت. نعمت اللہ. ویری گڈ. ہاں، انہوں نے ماشاءاللہ تینوں ایک دم صحیح کیے. تو آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کا ترجمہ آسانی سے ہو رہا ہے.
کہ بہت ہی آسان چیز ہے. بس ہم جو بھی آپ کو قواعد بتائے جا رہے ہیں ان قواعد کو ہمیں خیال رکھنا ہے. اور اگر ہمیں جو ان قواعد کی بہت کلیئر سمجھ ہے تو ہم بہت آسانی سے پہچان کے لیں گے قرآن میں اور حدیث میں. نہ صرف پہچان لیں گے بلکہ ترجمہ بھی کر لیں گے. کلثوم آ جائے اور وہ کریں نیکسٹ. قائم جی میم. کرنے والا کی اردو ہے مقیم. مقیم قائم الصلاۃ. قائم کرنے والا. ٹھیک ہے. قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والا. کھڑے ہونے کی پوزیشن کو بھی جب کیا جائے گا نا تو عربک میں لفظ آ جاتا ہے مقیم. مقیم. مقیم الصلاۃ. ویری گڈ. مقیمس. تھوڑا پیش کو بھی کلیئر کیجیے گا. مقیم ہاں مقیم الصلاۃ. ویری گڈ. جمعہ کا دن اس کا مطلب ہوتا ہے یوم. یوم کا مطلب ہوتا ہے آئی مین دن کا یوم مطلب ہوتا ہے یوم. الجمعہ. یوم الجمعہ. ویری گڈ. یوم الجمعہ. جمعتی. جمعہ. یہ دیکھ رہی ہے لٹکا ہوا ہے یہ ہا دکھ رہا ہے نا یہ ہا. یہ ایکچولی کیا تھی؟ یہ تائے مربوطہ تھی. اردو میں آ کے یہ جی جی. بدل دی گئی. یہاں پہ یہ جمعہ کا یہ دکھ رہا ہے. جمعہ. تو یہ یوم جمعہ جو ہے یہ الجمعہ. ہاں جین میم عین تا ہے تو جمعتی کرے. جمعہ. میں یہاں لکھ دوں جمعے اس کا. یوم الجمعہ. ہاں یہ ورڈ تھا جمعتو تھا. ٹھیک ہے. اور یہی جو ہے یہ جو تائے مربوطہ تھی یہ یہاں پہ یہ دکھ رہی ہے آپ کو. ہا کی طرح دکھ رہی ہے آپ کو. جی میم. ہاں تو یہ بس آپ نے کیا کیا کہ اس کو چونکہ مضاف الیہ بنا رہی ہے تو آپ نے اس کو کر دیا. ماشاءاللہ ایک دم صحیح. آگے چلیے. فجر کی نماز. غیب کا جاننے والا. نہیں یہ فجر کی عالم نماز نہیں کریں گی آپ. کیا نظر نہیں آ رہی. فجر کی نماز. نماز کہتے ہیں فجر صلاۃ. کی نماز. الصلاۃ الفجر. ماشاء اللہ آپ نے غلطی کر ہی لی. بتائیے کیا غلطی ہوئی. بتائیں ام کلثوم. بڑی غلطی ہو گئی. آپ کا تو مرکب اضافی بنا ہی نہیں. او سوری صلاۃ الفجر. نہ الف لام نہیں آنا تھا. صلاۃ الفجر. ویری گڈ. اب صحیح ہوا. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ اس کر دیں گے بس ختم ہو گئی بات. جی جی. لگے گا ہی نہیں کیونکہ آپ نے تو نمبر 1 کنڈیشن ہی کو ختم جی کر. جی. ٹھیک ہے. تو یاد رکھنی ہے سب کو یہ بات. صلاۃ الفجری. صلاۃ الفجری. صلاۃ الفجر. یاد صلاۃ رکھیے کہ اس میں رہے الفجر. گا. اس میں آپ اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے آپ ال بھی لگائیں گی اور تنوین بھی آ سکتی ہے. مرکب اضافی کے مضاف الیہ میں ال بھی آئے گی یا پھر تنوین بھی آ سکتی ہے. اس کی یہ کنڈیشن اور نہیں ہے. بس ایک کنڈیشن ہے کہ حالت جر میں ہوگی. تو بس آپ صلاۃ الفجری کریں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پہ بھی آپ نے کہا تھا یوم الجمعتی. جمعتی. ٹھیک ہے. آگے چلیے. نہیں آگے اب کوئی اور چلے گا. جزاک اللہ خیر ام کلثوم. روبینہ آپ آ جائیے. جی مس. غیب کا جاننے والا. عالم الغیبی. اس کے بعد ہے مومن کی مراج. مراج المؤمنی. ویری گڈ. دین کا ستون. اماد الدینی. ویری گڈ. عماد الدینی. بالکل صحیح کیا انہوں نے. ستون کا مطلب ہوتا ہے میں یہاں لکھ دوں کیا پتا کسی کو نہ پتا. اماد. دین کا. تو عماد الدینی. الدینی لگے گا. ٹھیک ہے. عماد الدینی اور پھر ظاہر ہے اس پہ ہم شمسی حروف ہے تو الدینی کر کے پڑھ لیں گے. ویری گڈ روبینہ. اب اس کے بعد آ جائیں افشا. مومن کی جیل. جیل کہتے ہیں سجن کو. جی سجن المومنین. جی سجن المومنین. جی ہاں ویری گڈ. سجن المؤمنی. اس کے بعد جی نیکسٹ کافر کی جنت جنت. الکافری. ہم جنت
काफिरिन। जन्नतुल काफिरी। जी, जन्नतुल काफिरी। ये क्या चीज दुनिया है? की। मोमिन की जेल और काफिर की जन्नत, ये क्या चीज होती है? हदीस से क्या पता चलता है? मैम दुनिया नजर सिजनुल मुमिनी। हाँ, ये मैम हदीस नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लर हो सिजनुल गया। मोमिन, दुनिया आपके पास मोमिन। आपके पास अगर अपनी बुक है तो अपनी बुक खोल लीजिए। दुनिया नहीं। सिजनुल मुमिनी और जन्नतुल काफिरी। ठीक है, जी। दुनिया जो जी। है वो मोमिन की जेल है और काफिर की जन्नत है। हदीस का जी। ये मफहूम है, मतलब हदीस का एक पार्ट है। चले आगे चलें। दुनिया की मोहब्बत। मोहब्बत। मोहब्बत कहते हैं हुब को, हुब। अच्छा, हुब्बुल दुनिया। दुनिया। वेरी गुड। हुब्बु हुब्बुल। दुनिया। जी, हुब्बुल दुनिया। आपने दुनिया क्यों किया, दुनिया क्यों नहीं किया? मैम ये मबनी है ना। वेरी गुड। हुब्बुद दुनिया। ठीक है, ये दुनिया आगे पढ़ना। ऐसे ही। और ये दुनिया यहाँ पे हालत नसब में है, रफा में है, जर में है, किस में है? ये दुनिया जो है वो हालत जर में है, हुब्बु जो है ना वो मुजाफ है ना, वो हालत रफा में है। हाँ, ये दुनिया जो है वो हालत जर में है यहाँ पे, मबनी इसमें। लेकिन जैसे ये मुजाफ इलैह बना तो अब इसकी कंडीशन क्लियर हो गई कि ये हालत जर में है। वेरी गुड। चलें अब आगे ले लेते हैं फरीदा को। फरजाना आप आइए। जी मैम। जी, नेक्स्ट कीजिए। किसी रास्ते का पार करने वाला। उबूर, तो उबूर मैम किया ना आपने? हाँ, उबूर कहते हैं ना, रास्ते को उबूर कर लिया हमने, रास्ता पार कर लिया, उबूर कर लिया। उसी से कर लीजिए। देखिए ये वर्ड देते हैं। अबू अबू रुल रुल नहीं नहीं, उबूरुल नहीं, सैराती। पार करने वाले को ये कहेंगे, और आबिरुल ओके कहेंगे। मैम, क्या कहेंगे? आवाज कट गई है। सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे दिख रहा है, सर्कल किया मैंने भी। ओके उबूर मैम। कहते हैं पार करने को, और पार करने वाले को कहेंगे आबिरुन। ओके मैम। आबिरुल सिराती। वेरी गुड। आपने इसको चेंज कर लिया, मैंने यहाँ आपको आबिरुन दिया था, आपने इसको आबिरू कर दिया। बिल्कुल सही किया। सिरात जो है वो खास रास्ता है, ठीक है। ओके मैम। ए, मैम हमें तो सही। इसका पता था ना। हाँ बिल्कुल, आपने सूरह फातिहा से ले लिया वहां से। जी मैम। तो वो सिरात जो है वो खास रास्ता है जो दुनिया से जन्नत की तरफ जाता है, ठीक है। ओके मैम। तो तो मैम आज दूसरा क्या होगा? सबील, सबील। सबील। ओके मैम। सबील कहते हैं रास्ते को, और इसकी जमा होती है सुबुल, कुरान में आता है, ठीक है। मैम सीन से ना। जी। हाँ ठीक है, सीन से ठीक है। अब अच्छा। बनाइए मुरक्कब अपना। आ, आब आब आबिरुल सबीली। आबिरुल तो नहीं होगा, आबिरुस होता। अगर होता तो सीन पे जाता, ठीक है। ओके मैम। लेकिन आप ये समझ लें, अब सब लोग यहाँ पे हाँ। गौर से सुने। ओके मैम, ये वो शमसी हरूफ है ना। जी हाँ, वेरी गुड। शमसी हरूफ है, तो अगर ये आबिरुस अल से होता। सबीली। हाँ। जी जी। आबिरुस सबीली। ठीक है, वेरी गुड। आबिरुस सबीली, आपने सही किया। लेकिन सवाल देखें यहाँ पे क्या है। सवाल है किसी रास्ते का, किसी रास्ते का पार करने वाला। तो इसने ये बताया कि ये किसी वर्ड की वजह से पता चला कि ये रास्ता कोई डेफिनेट रास्ते की बात नहीं, किसी भी रास्ते की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आबिरु। आबिरुस। ये तो हट जाएगी तनवीन, और ये सबीली की वजह से यहाँ अल भी नहीं आएगा, सबीलिन। आबिरु सबीलिन। ओके मैम ठीक है। फिर से मैं एक बार समझाती हूँ। आबिरुस। नहीं, ठीक है मैम। रुस पे ना आ गई जाए। मैम समझ के, मतलब किसी खास की तरफ नहीं है। ये मतलब कोई भी है, नॉर्मल, मतलब कोई भी हो सकता है रास्ता, मतलब कोई खास किसी नहीं भी। किया। तो अब देखिए, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको पढ़ना है। ये ओके मैम। हो गया हमारा मुदाफ, जो कि हो गया आबिरू। ठीक है, ये तनवीन मैंने हटा दी। उसके बाद किसी रास्ते की अरबिक होगी सबीलुन। ओके मैम। ठीक है, ये हो गया सबीलुन।
लुन, लेकिन इसको बनना है मुजाफ इलैह, तो ये सबीलुन के बजाय क्या हो जाएगा, सबीलिन। अब लिन, पढ़े, आबिरु सबीलिन। आबिरु सबीलिन। ठीक है, आबिरु सबीलिन, किसी रास्ते, ये नकीरा, अब हमको मुदाफ इलैह जो है वो नकीरा में ले जाना पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है। लड़के की दो किताबें, तो अब ऐसे आप तर्जुमा समझ ठीक, कर रही है ना। एक मिनट सुने, मैं एक प्लेन लेके चलूं, लेकिन फिर मेरा ये पेज मिस हो जाएगा। लड़के की दो किताबें, चलें याद रखें मेरे पास, ठीक है। तो जब मैंने प्रॉपर मेथड से जब करेंगे ना तब गलती नहीं होगी। यहाँ पे दो किताबें आ गई, जी मैम। पहले हम मुदाफ लिखेंगे ना, और यहाँ पे लड़का आ गया, है ना, लड़के जी की मैम। दो किताबें, और ये की बीच में है तो हमें जाहिर मुदाफिल है। तो अब दो किताबें की आप बनाएं, अरबी बनाएं। किताबुल बुल वालिदी। अल्लाहु अकबर, किताबुल, नहीं, पहले दो किताबें बनाए ना, दो किताब। ओके मैम, किताबानी आएगा ना, तो फिर हम नून को ड्रॉप कर देंगे ना, हाँ, किताबानी आएगा। पहले आप जो मैं कह रही हूँ ओके लाइन, मैम, सॉरी, मैंने कहा कि किताबानी। हाँ किताबानी। अब इसके बाद आप इसको मुदाफ बनाएं, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो ये हो गई आपकी ओके, किताबा, अब मुजाफ तैयार हो गया, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। और फिर उसके बाद लड़के की क्या बताएं, लड़के की दो किताबें। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ लड़का लिखा है, तब आप अल लगा लीजिए। अगर किसी लड़के की दो किताबें, तब आप तन्वीन लगा वाह, लीजिए। ये बात जी क्लियर मैम, हुई। जी मैम, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस पे लड़के के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो हम खास लड़का ले लेते हैं, अल वलदु ले लेते हैं, वाला तो, ठीक है। मैंने ले लिया अल वलदु। अब इसको आप मुदाफ इलैह बनाइए। किता नहीं नहीं, किताबल अब आप वा जा क्यों रही, वेट वेट वेट, आप यहाँ मत जी मैम। जाइए। मैंने आपसे कहा कि इसको आप मुदाफ इसको इलैह अच्छा, बना। अल वाला दी हो जाएगा ना। हाँ बस ये जो कहा जाए, बस स्टेप बाय स्टेप वो करिए, जल्दी ओके नहीं। मैम, तो ओके मैम। अब ये आपका देखिए मुदाफ इलैह तैयार हो गया, इधर मुदाफ जी, तैयार हो गया। अब बोलिए। किताबल वालदी। हम्म, किताबल वलदी, ठीक है। ओके मैम। लड़के की दो किताबें लिखते वक्त तो जाहिर हम ये अलिफ बोलेंगे, लेकिन बोलने में ये अल के साथ बोला नहीं जा रहा है। लड़के की दो किताबें। तो इस तरह जब भी करेंगी आप होमवर्क जो आपका आप करेंगी, वो डायरेक्ट ऐसे कोई भी नहीं करेगा कि, ओके हालांकि मैम, आसान है, अल्लाह का घर बैतुल्लाही, क्योंकि ये लफ्ज तो हम बोलते हैं ना, तो इसको जी हमें मैम। क्रॉस लगा के करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी करेगा वो हर लफ्ज को इस तरह से करना है, इस तरह से करना है हमको, कि पता चले कि आपने इसको मुदाफ समझ लिया। लिखने की जरूरत नहीं है, बेशक लिखे नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे किया गया है कि अल्लाह का घर, फिर आप घर की यहाँ पे बनाए, मुदाफ लेके बनाए उसको मुदाफ की कंडीशन के साथ। फिर जो आपका पहला लफ्ज था वो इधर गया, वो मुदाफ इलैह बन गया, उसको मुदाफ इलैह की कंडीशन पे पूरी करें, फिर आप लिखेंगी। ओके मैम। उसके बाद एक चाहे तो ये इसी पे यहाँ पे ही लिख लें, ओके, कोई बात नहीं। और चाहे तो एक साथ फिर मिला के लिख लें बैतुल्लाही। ओके लेकिन कोई भी ये पूरी एक्सरसाइज और एक दिन में नहीं करें, आपके पास पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। जितना हम पढ़ाएंगे आप रोज 10-10 कर लें, या एक सिटिंग में बैठ के पूरा ही कर लें, वो आपकी मर्जी। लेकिन कोई भी डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बनाए, बिल्कुल हर किसी को ये पैटर्न फॉलो करना है, जिससे दिमाग में चीजें अच्छी तरह सेट हो जाएं। चलिए शाबाश, अब किसी और को ले लेते हैं। मैम, और मेरा एक रह गया। आपने 3 कर लिए कि 6 कर लिए? मैम, अभी तो दो किए हैं, एक रह गया बस। चलिए शाबाश, एक और कर लिए। अब दो लड़कों की किताब, अब यहाँ पे देखिए आप आए, अब जी मैम। करिए, एरो हमने लगाया, मैं उर्दू में पूरा नहीं लिख रही हूँ। ये जी बताएं कि मैम। इसमें मुदाफ क्या है। मैम, मुजाफ तो किताब है ना, हाँ, किताबुन आ जाएगा ना। ये हो गया किताब, और ये मुदाफ इलैह की जगह पे क्या आएगा? दो लड़कों की, तो इसमें आएगा दो लड़के है ना। अल, जी, दो अल लड़कों वाला की, दानी, किताबुल वाला दा। हम्म, क्या बोला आपने, किताबुल वलदा? तो मैम नोन ड्रॉप हो जाएगा ना।
क्यों नून क्यों ड्रॉप होगा? इसका भी एराब हल्का करेंगी क्या आप? मैम आपने खुद ही तो कहा था मुसन्ना का। गौर ओ से सॉरी, ओ सॉरी 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 गौर सॉरी से सॉरी। सुने। नहीं नहीं नहीं, नो मैम, वो था मुजाफ के लिए, सॉरी मैम, मिक्स हो गया। सॉरी मैम, कोई बात सॉरी नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए किताब, एराब इसका हल्का होता है, इसको क्या सेम, सॉरी करेंगे? मैम, मुजाफ का हल्का होता है। मुजाफ ला तो हालते जर में ही होता है। हम्म। किताबुल वाला दानी, तो और वलादानी आगे को, आएगा किताबुल वाला दईनी। अब जाके सही हुआ। इसको हालते जर में लेके जाएंगी आप। जी ठीक मैम, है। किताबुल जबकि वाला इस दईनी। जगह पे बिल्कुल भी आप थोड़ा जल्दी में हैं, है ना? जैसे मैम असल में मुझे नाश्ता देना है ना, इसलिए मैं खड़ी हूँ, मुझे नमाज भी पढ़नी है फजर की। चले ठीक है, क्योंकि तो मैं आप क्लास नाश्ता किसी भी। सूरत मिस नहीं ना करना चाह रही थी, तो मैं कहा मैं अभी बता दूं, फिर मैं नहीं जाके तो आप नमाज पढ़। आखिर में आ जाती, बाद में आ जाती। मैम नहीं ना, फिर मैंने टाइम थोड़ा, फिर एंड पर मैं सिर्फ लिसनिंग करूंगी, इसलिए चलिए ठीक है, मैंने कोई कहा। बात नहीं, आप जाएं। अगर ऐसा कुछ है तो आप सबसे पहले मुझे पहले से मैसेज कर दें, तो मैं आपको क्योंकि सबसे मेरा पहले ले मैम इस लूंगी। टाइम, जिस टाइम मैं क्लास शुरू करती हूँ, मेरा नमाज का टाइम हो जाता है फजर ठीक का। है। तो इसलिए फिर मैं क्लास तो मिस भी नहीं ना करना चाहती, इसलिए मैं नहीं, जरा बहुत जल्दी में अच्छी थी। बात है। आपको कल से मैं जब भी क्लास होगी सबसे पहले मैं आपको ले लूंगी। तो आप अपना जज़ाकल्लाह। क्लास में पार्ट लेना चाहती हैं तो आप क्लास में पार्ट लेके इत्मीनान से नमाज पढ़ें, नाश्ता करें और रिकॉर्डिंग से पूरी कर लें। ठीक है। ठीक है, मतलब जज़ाकल्लाह मैम। मतलब तो आप नमाज में नहीं रह सकती, लेकिन नाश्ते में तो रह सकती हैं। आप रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग से कीजिए। जज़ाकल्लाह मैम। तो ये बन गया हमारा किताबुल वलदैनी, जैसा कि इन्होंने बिल्कुल सही बताया। तो मिला के कर लेंगे, इसको हालत जर में लेके जाएंगे तो आनी से बन जाएगा आईनी। ठीक है। किताबुल वलदैनी, इस तरह से हमारा दो लड़कों की किताब बन गया। हम यही कर रहे थे, दो लड़कों की किताब कहाँ गई? ये देखिए, दो लड़कों की किताब। तो जब आप एरो लगा के करेंगे तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप, और बहुत, वो जो हमने बिल्कुल, जो मैं बार बार क्लास में इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि वो सारे कवायद आप अप्लाई करें। जब अप्लाई करेंगी बन जाएंगी। चलिए जैद के दोनों घर देखते हैं, या अब यहाँ पे देख लीजिए, और मैं बुलाती हूँ अब इंशाअल्लाह ताला माहम। माहम आ जाइए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैद के दोनों घर। अब मैंने एरो लगाया। अब हाँ पहले जी एरो पे मैं क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? बाजी, बैतुल लिख लेना पहले नहीं आप। नहीं, पहले मुझे आप लोग बहुत जल्दी में हैं। नहीं, अच्छा दोनों घर लिख लें। हाँ, दोनों घर। और इधर क्या लिखूं? जैद। जईद लिख लें। वैसे ये लिखने की उतनी जरूरत थी नहीं, आप सही कह रही थी। अब दोनों घर की हमें अरबी बता दें। दोनों इसलिए घर हो अरबी जाएगा के फिर बई। अब देखेंगे ना तो अरबी देखने में फिर इजी हो जाता है, वहां से देख देख के चलें। शाबाश। अगर ये ना भी बई देखें तो नहीं चलेगा। करेंगे तो उसका जब नून हटाएंगे तो बई ता हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा जईदिन। और ये तो जी, मिला के क्या पढ़ देंगे हम? बई ता जईदिन। वेरी गुड, बैता जईदिन। उसके आगे कीजिए, मुसलमानों का घर। क्या मुसलमानों का। करेंगी एरो लगा के? क्रॉस करेंगे पहले। हम्म। और घर जो हो जाएगा वो मुजाफ हो जाएगा। हम्म। और मुसलमानों जो है वो मुजाफ इलैह हो जाएगा। हम्म। और मुसलमानों को क्या लिखूं? मुस्लिम। हाँ, मुस्लिमुन से क्या बना था? मुसलमानों बनाई। मुस्लिमून नहीं बाजी। हाँ, मुस्लिमून ही आएगा। वेरी गुड। अल मुस्लिमूना, ठीक है। मुस्लिमून। हाँ जी। तो अब इसको मुजाफ बनाइए। बैतुल मीना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जर में चला गया और ये बन जी गया बैतुल मुस्लिमीना। ठीक है। जी। इसका एराब हल्का है, बैतुन था, इसको ऐसे कर ले कि बैतुन से इसको बैतु कर लिया। तो हाँ जी बैतुल मुस्लिमीना। वेरी गुड। आगे चलिए, आगे क्या है? बाजी, आप स्क्रीन नीचे करेंगी। जी हो गया। मदीना के मुसलमान। मदीना हो जाएगा मुजाफ इलैह इसमें, और मुसलमान हो जाएगा मुजाफ।
तो आप उल्टा क्यों बता रही हैं मुझे? पहले मुझे मुजाफ बताइए। मुसलमान, जी हाँ। मुस्लिम, मुस्लिमुन या सेकंड में। हाँ तो मुसलमान होगा, मुसलमानों है ना, तो मदीना के मुसलमान। जब देखिए, जब मदीना के मुसलमान, मदीना का मुसलमान होता तब एक होता। थोड़ा उर्दू भी समझे, ग्रामर। हाँ अगर ये मदीना के मुसलमान, तो ये प्लूरल हो गया ना, मुसलमान। जी जी। तो तो ये ये हो गया मुस्लिमूना, मतलब है ना। हाँ जी। चले, ये हमारे बन गया, मुजाफ हमारा मिल गया, मुस्लिमूना। जी, और वो हो जाएगा मदीना। हाँ, मदीना। तो बाजी इसमें भी जुमे की तरह वो गोल दायर मरबूता कर देंगे, जिससे आपने जुमा की वो बताई थी। क्या चीज? जी हाँ, मदीना, ये भी ताय मरबूता है, ये भी मदीना भी हाँ मुअन्नस ही। वैसे भी शहर के नाम मुअन्नस होते, लेकिन मदीना तो ताय मरबूता भी है इसमें। ठीक है, ये क्या, तो चले। तो और ये जी। मदीना तो जो है वो अल के साथ भी आता है। ठीक है, कुछ इसमें है हाँ, जो वो अल के साथ बुलाते हैं, तो अल के साथ भी हम उन्हें बुलाएंगे। अल और मदीना, बाजी मदीना मुनव्वरा है। हाँ में तो ये गैर मुनसरिफ हो जाएगा, इस जेर तो आएगी नहीं इसके नीचे। क्यों हम, जेर क्यों नहीं आएगी? बाजी ये हालत जार में भी जबर नहीं है, तो मदीन शहरों और मुल्कों के नाम वाली जो कैटेगरी है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये शहर का नाम नहीं है। आपने सीधा नहीं पढ़ी, मदीना जो है वो शहर का नाम नहीं था। हाँ हाँ जी। नाम उसका यसरत था। हाँ जी हाँ जी। आप सीरा पढ़े। वो ठीक। चूंकि मदीनतुन नबी बना है ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां हिजरत करके गए, तो यसरब का नाम उन लोगों मदीना। ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑनर में, अब उसको कहने लगे नबी का शहर। वो मुरक्कब इजाफी बन गया। ओके। ठीक है, मदीनतुन नबी हो गया, नबी का शहर करके बुलाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मदीनतुन नबी के बजाय सिर्फ मदीना रह गया। मदीना के नाम से वो मशहूर हो गया। मदीना कहते हैं शहर को। ठीक है, ठीक है। मदीना के मुसलमान यहाँ पे समझ लें कि किसी भी शहर के मुसलमान है, इस तरह से यहाँ तर्जुमा किया जा रहा है। तो चले। नून तो खत्म नहीं करते ना हमने मुजाफ का। जी हाँ, नून खत्म कर दें। हाँ जी, मुस्लिमुल मदीनती। वेरी गुड, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हाँ जी। लेकिन मुस्लिमुल मदीनती, और ये वाव यहाँ रह जाएगा। ठीक है, हाँ शाबाश, वेरी गुड, आपके हो गए तीनों पूरे। उसके सर। बाद ले लेते हैं जजाकल्ला खैर। इंटरेस्टिंग है, और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो मैम गलती होने के मैम फजीलत चांसेस बोल होते रही हूँ। मेरा ना अब उस वक्त जगह सही पे नहीं बैठी हुई थी मेरे से थोड़ा। हैं। ठीक है फजीलत, आ जाइए, अब आ जाइए। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जी तमाम मैम। जहानों का रब, आपको तो बहुत आसान मिल गया। फजीलत आ जाए, आप ही आ जाए। तमाम जहानों का रब। अब यहाँ पे आप पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगी आप। मैं कहाँ जाऊं, ऊपर चलूं? यहाँ चलते हैं। यहाँ मैं पहले लिख देती हूँ आपका मुरक्कब। तमाम जहानों का रब। अब आप रब इधर और तमाम जहानों इधर करिए। ये रब का तर्जुमा करिए, रब्बुन। रब्बुल। और इसका कीजिए, तमाम तमाम जहानों जहान का कीजिए। आलमीन। हाँ रब्बुल आलमीनी की आलमीना। मीना भी आ जाता है ना हालत जर में। जी हाँ, ईना ईना ईना। आलमीना। ठीक है, जी मैम। ईना रब्बुल के साथ। आलमीना। जी हाँ, वेरी गुड। तो ये आपका जर की हालत में है, आपने शुरू में ही जर बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रब्बू हो जाएगा। ठीक है, रब्बुल आलमीना। ईना। और आप ऐसे बोलती हैं रब्बुल आलमीन, है ना, जी क्योंकि वहां मैम। तो आप हर को साकिन कर देती हैं, लेकिन ग्रामर की क्लास में तो आपको ई ना बोलना पड़ेगा। चले, जी मैम। उसके बाद दूसरा कहाँ चला गया हमारा? तमाम इंसानों का बादशाह। तमाम इंसान की अरबी क्या होती है? सूरह अन्नास के नाम क्या है? निसा। अ, नहीं, मैंने बता दिया आपको। सूरह अन्नास में जो अन्नास अन्नास आता है वो क्या है?
ठीक है। मैम मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज की ना। सूरह चलें मैं बताती हूँ। तमाम इंसानों का बादशाह, तो बादशाह यहां लिख दूं मैं, जी मैम। और यहां लिख दूं तमाम इंसानों। चले शाबाश। अब बादशाह की अरबिक बताएं आप। मैम जिन में नहीं आ रही बादशाह के भी। मलिक। मलिक, यस मलिक। याद रखें, देखें अरबिक में जरा सी जबर जेर से बहुत फर्क पड़ जाता है। मलक जी मैम। कहते हैं फरिश्ता को, एक फरिश्ते को क्या कहते हैं? मलक। ये भी याद कर लें आज ही। और बादशाह भी मलक कहते हैं, मलकुन जैसे कहेंगे, मलक। मलकुल मलक। मौत बोलती है ना आप। जी देखिए अब ये जी जो आप मैम। बोलती है मुरक्कब इजाफी बोलती है उर्दू में, मलकुल मौत। मलकुल मौत, यस। तो आपने देखिए मलकुन को क्या किया, मलकू कर दिया, और उधर अल मलक। मौती को आप तीन ही बोल रही हैं, ताहे पे ही चुप हो जाती। तो वो मलक कहते हैं फरिश्ते को। मलकुल मौत से सब लोग याद कर लें। मलकुल मौत को भी बहुत याद करना चाहिए, रोज दो तीन बार तो याद ही कर लेना चाहिए अपने दुरुस्त रहने के मैम लिए। इसे। तो जी मलक, मैम। मलक कहते हैं फरिश्ते को, और मलिक कहते हैं बादशाह को। मलिक। जी मैम। तो ये हम यहाँ तनवीन के साथ लिख दें, जब भी कोई इसम बताते हैं अरबिक में तो तनवीन के साथ। तो मलकुन और मलिकुन, फर्क याद रहेगा। जी मैम। चले मैम शाबाश। पहले में लाम के ऊपर फतह है और दूसरे में लाम के नीचे कसर है। जी हाँ, यही बता रही हूं मैं कि जी मैम। लाम के पे जबर अगर है तो वो फरिश्ता बन गया, और जी लाम मैम। के नीचे जेर है तो वो बादशाह बन गया। ठीक है। जी मैम। जी तो मैम। चले बादशाह को अब ये वाला वर्ड यहाँ ले लें और उसका एराब हल्का करें। जी मैम। मालाकू। है, आपने तो फरिश्ता कर दिया। मालिकू। मालिकू, यस। हाँ, मलिकू। और अब तमाम इंसानों की अरबी है अन्नास। अन्नास। इमाम मालिक। मालिक मालिकुन्नास। हाँ मालिकुन्नासी। हाँ, ये जरूरी है, आपको हालत जर दिखाना है। जी मैम। मलिकुन नासी, अब हो नासी। गया आपका मुरक्कब तैयार। ठीक है। जी मैम। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ नीचे जाना होगा? मस्जिद के दरवाजे। जी मैम। तो अब मस्जिद के दरवाजे यहाँ लिख सकती हूँ मैं? नहीं, यहाँ नहीं लिख सकती। यहाँ लिखते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं। तो अब एरो इधर किया मैंने और इधर किया। दरवाजे, दरवाजे की अरबिक क्या होगी? बाप। बाब हो गई दरवाजा। जी मैम। दरवाजे दरवाजे की, अबवाब। वेरी गुड, अब वाबुन। अबवाबुन। हाँ, और मस्जिद की अंग्रेजी क्या हो गई? आई मीन अंग्रेजी में कह रही हूँ, अरबिक हो गई। मस्जिद, ये मैम। हाँ, मस्जिद ही हो गई। तो ये देखिए सिर्फ मस्जिद लिखा है ना, तो हम अल से लिखेंगे। अगर ये कोई मस्जिद है, कोई एक मस्जिद होता तो हम तनवीन के साथ लिख देते। सिर्फ मस्जिद है तो अल के साथ। अब वाबुन। अबवाबुल मस्जिदी। वेरी गुड, इसको जर में कर दीजिए और इसका जी एराब मैम। हल्का कर दीजिए, और हो गया अब वाबुल मस्जिदी। मस्जिदी। ठीक है। जी मैम। एक जी और कर मैम। लेते हैं, अल्लाह की निशानियां। ठीक है। तो अब जी मैम। निशानियां मैं एरो इधर लगा रही हूँ। निशानियां ये हो गई, और अल्लाह लफ्ज इधर आ गया। तो निशानी की अरबिक बताएं क्या होती है? मैम आयत। वेरी यहाँ गुड, आयात है आयत इधर। होती है। तो निशानियां उसका जमा बनाए। आयातुन। वेरी गुड, आयातुन। ठीक है। तो जी मैम। इसी पेज पे रहना पड़ेगा मुझे, एक मिनट में ऊपर आती हूँ। आ आयातुन। हाँ, आया तू हो जाएगा ना। ये हल्का करेंगे तो आयातु। वेरी तो गुड, आयात। मैं करूँ आगे आयातुल्लाही। वेरी गुड, सही, आयातुल्लाही, अल्लाह की आयात, अल्लाह की निशानियां। तो बस यहाँ तक ही करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये, जैसा कि मैंने कहा कि एक्सरसाइज थोड़ा वक्त लेगी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये चैप्टर है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, और बहुत ही आसान है। सुबहान अल्लाह, सिर्फ तीन चीजें ख्याल रखनी पड़ती हैं। क्या चीज? कि मुदाफ का हमें अल से शुरू नहीं होना चाहिए, और एराब हल्का होना चाहिए, बस। और उसके बाद
जो मुदाफ इलैह हमको मिलता है उसको हम हालत जर में ले जाएंगे। हर कोई पूरे हर हर लफ्ज का इसी तरह आप पहले अल्लाह का घर लिखेंगी, उसके बाद बिल्कुल जैसे ये किया है, ये आपका पैटर्न होगा, इसी पैटर्न में आपको करना है। और ऐसे ही बस लिख दें, कम से कम ही लिख लें, कोई बात नहीं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह का घर चाहे तो ऐसे कर सकती हैं, दिखा ले। अभी आप शुरू में है ना, इस जो बिगनर्स होते हैं उनको अरबिक में कहते हैं मुब्तदी, ठीक है, मुब्तदी, वो स्टूडेंट्स जो बिगनर है, इंग्लिश में हम लोग बिगनर्स कहते हैं, मुब्तदी। जैसा कि आप लोग अभी मुब्तदी हैं, तो बेहतर ये है कि घर जब लिखें तो पहले लिखें बैतुन, और जब ये लिखें तो लिखें अल्लाहु, जो उसकी नॉर्मल हालत है। पहले आप इसका तर्जुमा लिखें, अभी आप मुरक्कब इजाफी नहीं बना रही हैं। आपने कहा अल्लाह का घर, आपको पता चला कि इसका तर्जुमा आपको क्रॉस तीर से करना है। मैं स्टेप्स एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ। अल्लाह का घर आपको क्रॉस तीर से इसका करना है, तो आप पहले क्रॉस तीर लगा के अल्फाज के मानी लिखें, वर्ड मीनिंग की तरह से। उसके बाद इसको आप मुदाफ बनाएं। जब इसको मुदाफ बनाएंगी तो इसको कट करके यहाँ पेश कर दें। इसको आप मुदाफ इलैह बनाएंगी तो इसको कट करके यहाँ पे जेर कर दें। उसके बाद साफ सुथरा सा यहाँ पे बैतुल्लाही एक बार लिख लें। जब ये आप प्रोसेस करेंगी तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या क्या करना है। जैसे अगर यहाँ पे नून एराबी आता तो आप नून को कट करती, फिर आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। डायरेक्ट बिल्कुल ना करें। ये बात होती है कि आप डायरेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि आपकी इस वक्त समझ में चीज बहुत अच्छी तरह आ गई है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को ले जाने के लिए स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये पूरी एक्सरसाइज कोशिश करें। अगर आप पूरा ही कर लेंगी मुझे लगता है एक सिटिंग में, लेकिन आपकी मर्जी, जब भी कर लें। जब आपका ये पूरा हो जाए तो आप पिक्चर लेके ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है। तो एक पेज में हमें लगता है कि बस आप 4 कर पाएंगी। नीट करिए, क्लियर कीजिए, अपने 4 4 मुरक्कब एक एक पेज पे कर लीजिए, बिल्कुल अलग अलग से आपको दिखाई दे, और इंशाअल्लाह ताला आसान लग रहा है सबको। जब जी यहाँ मैम। मुरक्कबात शुरू होती है तो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मजा भी आने लगता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने कहा कि बस इसको कीजिएगा, आगे आपको कुछ भी देख के पढ़ के आने की जरूरत नहीं है। क्लास में ही हम स्ट्रगल कर करके करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। हम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा बोल रहा है तो उसको नंबर ज्यादा मिल रहे हैं या कोई टॉपर की डिग्री मिलेगी उसे, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होगा। तो बस आप यहाँ तक करेंगी, उसके बाद इसको देखें भी ना, ना इसको देखें ना इसका आंसर देखें, कुछ भी ना देखें। वर्ड मीनिंग वगैरह जो भी नहीं आता रहेगा वो मैं यहाँ बताऊंगी, उसके लिए भी परेशान ना हो। कुछ भूल जाए उसके लिए भी परेशान ना हो। भूला हुआ याद करने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और हमारा तो रूट वर्ड ही है नून सीन या, तो भूलने का तो पूरी आपको हक है, ठीक है। तो उसके लिए भी परेशान ना हो, लेकिन मरियम, इसको जो है आप रिवाइज करती रहें अपना, भूले नहीं, ठीक है। हमारा रूट लेटर तो भूलना है, लेकिन अभी जल्दी ही पढ़ रहे थे कि भूल कर भी गुनाह करना अलाउड नहीं है। सुबहान अल्लाह, हम तो बहुत जल्दी भूलने को एक एक्सक्यूज हमने बना लिया है ना। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमको पता चलता है उन्होंने भूल के फल खा लिया था, उस पर ये सजा मिली दुनिया की, है ना। तो भूल के भी गलती करने की भूलना अल्लाह ताला ने रखा है, लेकिन हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि हम भूले नहीं। उसके लिए करना क्या है कि अपनी नोटबुक के पेजेस को हमें टर्न करते रहना है, देखते रहना है, रिवाइज करते रहना है इंशाअल्लाह ताला। चले खत्म करते हैं क्लास को। वाखिर दावाना मैम एक अनिल। सवाल करूं? जी हाँ करें। मैम वो आप कोई टेस्ट लेंगे? जी मैम पूछना था कि आप टेस्ट लेंगी ये जो मुरक्कबात जो हम पढ़ रहे हैं? ये रोज जो हो रहा है ये टेस्ट ही हो रहा है, लेकिन ले भी लूंगी। ठीक। लेकिन मुझे टेस्ट लेने से आपसे ज्यादा खौफ मुझे आता है। आपको तो एक टेस्ट देना होगा और मुझे इतना सारा चेक करना होगा जिसका कि टाइम मुझे सही। बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ठीक। ठीक है।
तो ओरल टेस्ट जो यहाँ पे होता है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल कोई भी आंसर की देख के ना आए, कोई भी वर्ड मीनिंग देख। अब जैसे मैंने कह दिया ये अगले हफ्ते करूंगी, तो आपको लगेगा कि चले मैं देख लूं कि है ना, तो वो सब कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं सीखेंगे ना, तो इंशाल्लाह नहीं ताला आपको याद रहेगा। बस आप यहाँ तक अपनी इंशाल्लाह। और इसको कुछ भी ना देख के आए, यहाँ पे हम कराएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके मैम। जब हम कर रहे हैं तो टेस्ट है, जैसा कि आप कह रही हैं कि टेस्ट भी ले लूंगी अगर आप लोग चाहती हैं, वरना तो मैंने ये कोर्स ऐसे ही डिजाइन किया कि इसमें टेस्ट ना लूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट टेस्ट से भाग जाते हैं। तो लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो टेस्ट भी जरूर लेंगे, क्योंकि टेस्ट से तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है ना। जब हम टेस्ट के लिए पढ़ते हैं तो तैयारी हमारी चीजें बहुत क्लियर होती हैं। तो टेस्ट भी लेंगे, लेकिन करेक्शन आप लोग एक दूसरे का करेंगी। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह एक बार टेस्ट दे दूं। मतलब तरीका ये होगा कि मैं टेस्ट पेपर भी मैं बनाऊंगी और उसको मैं सॉल्व करके भी ग्रुप में डाल दूंगी टेस्ट के बाद। उसके बाद उस आंसर की से आप लोग एक दूसरे का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।